दिया था. Okay. Okay. So today we will start our new compound, that is new compound. Ethanoic acid. Okay. New compound is ethanoic acid. सर Okay. ये पहला टॉपिक है ना आज की क्लास का? हाँ, आज की क्लास से ये पहला टॉपिक है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल कंप्लीट किया था. हाँ ओके. सर. आज वाले कंपाउंड है इथानोइक एसिड, वो कंप्लीट करेंगे. तो ये तो IUPAC नेमिंग जब हुआ था उस टाइम पे हम लोग बताए थे इथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है. CH3COOH. This is ethanoic acid. Okay. The common name of ethanoic acid is acetic acid. Common name is acetic acid. Okay. अभी नेम से पता चल रहा है कि दिस इज एसिड. सो अगर ये एसिड है, so in presence of blue litmus or acetic acid turns blue litmus to the Sir, red. red. Very good. That means ethanoic acid showing acidic character. Okay. And it changes the color of the blue litmus to the red. Okay. Remember its pH value. Its pH value is nearly 4. Okay. It's nearly 4. That's mean a weak acid. Okay, ethanoic acid is a weak acid. It is weak acid. Now tell me what is the formula of pH? Sir, negative logarithm of concentration of hydrogen ions. Negative logarithm of concentration of hydrogen ion. Okay, very good. So we know that pH equal to potential of hydrogen, power of hydrogen, and the more the value of pH, weaker is the acid. Lesser the value of pH, strong will be the acid. Okay. So as its value is nearly 4, it is a weak acid. Okay. And this is the first portion of the reaction, that it is reacts with blue litmus and turns blue litmus to red, and its pH is nearly 4, and it is a weak acid. Next, we have to read, that is reaction with carbonates and bicarbonates. यहाँ प्रांत reaction with carbonates and bicarbonates. तो इसका मतलब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन. इथेनोइक एसिड के साथ हम लोग कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऐड करेंगे तो क्या होगा. देखो, हम लोग ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टाइम भी पढ़ा था कि अगर
कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होता है तो जनरली ये क्या फॉर्म करता है, एक सॉल्ट फॉर्म करता है, ठीक है। उसके साथ CO2 इवॉल्व होता है और वाटर, ठीक है। तो यहाँ भी कार्बोनेट्स लो या फिर बाइकार्बोनेट्स लो on reacting with ethanoic acid, it will produce one salt, CO2 and water. One salt, CO2 and water. So suppose this is acetic acid and this is sodium carbonate. So it will form salt. So salt of sodium and acid. Okay. So it will form CH3 COO Na. Sodium salt of acetic acid. Yes, Gion, this is the first page. So CH3 COO Na, sodium salt of carboxylic acid, that is acetic acid, plus CO2 plus water. This is salt. Sodium, this is salt. Sodium ethanoate. Okay, this is IUPAC name, sodium ethanoate. Hey, And common name is sodium acetate. This is IUPAC name, this is common name. Okay, ethanoic acid was the IUPAC name, so sodium ethanoate is IUPAC name. Acetic acid was the common name, so sodium acetate is the common name. Suppose it's reacting with NaHCO3, that is sodium bicarbonate, then it forms also CH3 COO Na plus CO2 plus H2O. Difference is just for balancing. Here to balance, we will take 2 molecules of acetic acid, 2 molecules of sodium acetate. That's it. Okay. So when सर ठीक है, acetic, huh? कुछ नहीं है सर, ठीक है। Hmm. Next, reaction with बेस। तो देखो एसिड के साथ बेस का रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, सर सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज एसिटिक एसिड। अब एक बेस ले रहे हैं, सपोज NaOH, तो सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज सोडियम एसिटेट, कॉमन नेम सोडियम एसिटेट एंड वाटर। ओके, तो बेस के साथ हमेशा सॉल्ट एंड वाटर होता है, ये हम लोगों ने एसिड बेस में बहुत बार पढ़ा है, दैट इज कॉमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, that is with alcohol. So remember, acid plus alcohol
Okay, it gives ester and water. Now acid means organic acid, okay, not inorganic acid. Organic acid reacts with alcohol to give ester and water, not HCl. HCl reacting with alcohol, it will form salt. So organic acid, and we know that ethanoic acid is organic acid. So this is ethanoic acid. Suppose this is the alcohol, ethanol. We have read in last class this is ethanol. So and we have I think read that this reaction also. Yes, I think नो सर नहीं हुआ था. नहीं हुआ था. अल्कोहल प्लस एसिड का रिएक्शन नहीं बताए थे. नहीं सर नहीं हुआ था. ओ अच्छा हाँ हुआ था सर हुआ था. एस्टर फॉर्म हुआ था, स्वीट स्मेल सर होता है. एस्टर और वाटर. हाँ बताए सर थे वो ना. C2H5OH था. हाँ तो ये C2H5 वही चीज है, इसको ब्रेक करके लिखे हैं. ओ अच्छा. It will form CH3COO C2H5. Okay, plus water. So this is the basically the name of this reaction is. It is also called. It is also called esterification reaction. हाँ सर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ही ये वाला रिएक्शन आया था. हाँ तो this is esterification reaction. स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होता है. फिर ज्यादातर जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए इसको यूज करते हैं, सब बताए थे. ठीक है, तो वहां से ये पूरा सेम है. नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. जो एस्टर प्रोड्यूस हुआ उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे. अच्छा नोट डाउन कर रहे हो ना, सारा नोट डाउन हुआ है ना यहाँ तक. हाँ सर हो गया. किसी का छूटा है? ओके, किसी का मिसिंग हो रहा तो फिर बोलना, ठीक है, मिस मत करना. नहीं सर. ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होते थे, तो सपोज दिस इज एस्टर. सर हाइड्रोलिसिस मतलब हम लोग एस्टर के साथ अ, ये करेंगे, एस्टर को बेस सॉल्यूशन में हीट करेंगे. तो हीट करने पर क्या होगा, एस्टर मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, उसी को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. It is reacting with NaOH solution. सर इथेनॉइक एसिड का हो गया रिएक्शन खत्म. This is last reaction. Heat, then it will form sodium salt of ethanoic acid, and it will give us the parent alcohol. Okay, by the hydrolysis of ester, we will get the parent alcohol. Yes sir done. Okay. तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से हम लोग एस्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एस्टर है या फिर नहीं है. ठीक है. हाँ सर उसके स्वीट स्मेल से जो जूसी हाँ. टाइप का होगा. हाँ
Okay. So the next topic. Wait. Next topic is soaps and detergents. सर ये तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना? Most probably, I think. Soaps and detergent ही तो last है बात चाहिए. ओके सर. हाँ, यही last है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे सोप. ठीक है. देखो सोप क्या है. सोप मेरा बेसिकली एक लॉन्ग चेन है. ठीक है. जिसमें वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट है सोप. दैट मीन्स सोप इज सोडियम और पोटेशियम. वेट. सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. सोप में क्या होता है ना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ जनरल जो सोप होता है, हम लोग जो सोप का एग्जांपल्स बोलते हैं दैट इज सोडियम स्टीयरेट. ठीक है. या फिर हम लोग और एक सॉल्ट सोप का लेते हैं दैट इज सोडियम पाल्मिटेट. ओके. सोडियम स्टीयरेट कहाँ से फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है स्टीयरिक एसिड एंड सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट. और पाल्मिटेट कहाँ से फॉर्म होता है? पाल्मिटिक एसिड एंड उसके साथ सोडियम का रिएक्शन में. सर. हाँ. सर थोड़ा अपना पेज राइट साइड मूव करिए ना.
सर stearate एक बार sodium फिर से बोलिए सर, क्या बोल रहे? क्या करे, राइट या लेफ्ट करे? सर राइट। सर एक बार फिर से बोलिए, अभी क्या एक्सप्लेन किए हैं? अच्छा ऐसे देन ठीक है, या फिर और हटाए? नहीं सर अब ठीक है। हम बोल रहे सोप होता है मेरा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, उसका सॉल्ट तो बोलेंगे सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट तो बोलेंगे सोप। देखो ये भी मेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट दिस इज नॉट लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन मतलब नियर अबाउट 15-17 कार्बन एटम्स। ठीक है, सो इसको सोप नहीं बताएंगे क्योंकि ये स्मॉल चेन है, लेकिन ये तो लॉन्ग चेन रहेगा तब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये मेरा सोप है। ठीक है, तो लॉन्ग चेन मतलब एक होता है सोडियम स्टीयरेट जो स्टीयरिक एसिड से फॉर्म होता है, और एक होता है पल्मिटिक एसिड से जिसको बोलते हैं सोडियम पल्मिटेट। फॉर्मूला क्या होता है सोडियम स्टीयरेट का? C17H35 COO minus Na plus। C17H35 COO Na, it is the sodium स्टीयरेट। और पल्मिटेट क्या होगा? पल्मिटेट होगा C15H31 COO Na। ठीक है, नाउ अच्छे से समझिए यहाँ से कि सोप जो है, सोप इज बेसिक इन नेचर। व्हाई? दिस इज फॉर्म बाय द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सपोज ये एसिड था COOH और ये NaOH था, तो वाटर निकल दिया और Na यहाँ पर आ गया, तो ये फॉर्म कैसे हुआ है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये बेसिक इन Basic. नेचर हो जाएगा। ठीक है, और हम तो पता भी है सोप मेरा बेस होता है, हम लोग एसिड बेस में पढ़े थे। तो अगर ये बेस है तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस तो कहाँ लेते जाता है? ब्लू में टर्न्स कन्वर्ट। टू ब्लू। रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू। ठीक है, तो सोप मेरा मतलब कैसे फॉर्म होगा ना, हम लोग लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसके साथ सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, तब मेरा सोप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो सोप का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देते, ये जो लॉन्ग चेन है तो इसको कैसे डिनोट किया हुआ रहता है स्ट्रक्चर के फॉर्म पे? लाइक दिस। रजिस्टर का जैसा रजिस्टर। हाँ रजिस्टर होता है ना सर इलेक्ट्रिसिटी में, वैसा। हाँ, रजिस्टर मतलब बेसिकली इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। हमने क्लास 11 में देखे थे, या फिर जब एडवांस क्लासेस जो अभी हो रहा है तो वहाँ पर शायद बोला भी जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन notation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 this is 17 now COO minus Na plus। तो जो C17 है बेसिकली क्या है ना, CH3 CH2 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 ऐसे तरह से चल रहा है, तो उतना नहीं लिखने की जगह पे हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन करते हैं बॉन्ड से। हर एक पोजीशन मतलब ये जो हर एक पोजीशन है इट डिनोट्स कार्बन, ओके, इट डिनोट्स कार्बन। सो
टर्मिनल कार्बन है, तो टर्मिनल कार्बन में क्या प्रेजेंट होता है? CH3, 3 हाइड्रोजन इधर और एक बॉन्ड इधर, 4 वैलेंसी हो गया। और बीच वाले सब पोजीशन में क्या है? CH2 है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक इसके साथ एक इसके साथ। ठीक है, समझे? हाँ सर। सर COO माइनस और Na प्लस मतलब? ये वाला पोर्शन तो सिर्फ हम लोग अलग से लिखे। अच्छा सर, ये होता क्या है सर COO माइनस Na प्लस? अरे COONA है, यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखे, ये CH3 COONA, तो इसको अगर हाँ सर। डिसोसिएट करेंगे तो कैसे फॉर्म होगा? CH3 COO माइनस और Na प्लस फॉर्म होगा ना। हाँ सर। तो उसी तो यहाँ पर लिखे थी वो, मतलब उसमें 4 सेपरेशन तो समझाने के लिए थी। वो डिसोसिएट होगा तो वो CH3 मतलब ये लॉन्ग चेन और COO माइनस फॉर्म करेगा और ये Na प्लस फॉर्म करेगा। ओके सर, ठीक है सर। मतलब इतना सा पोर्शन जब ब्रेक होगा तो ये एसिडिक पोर्शन है, तो ये C17H35 COO माइनस बनेगा और ये Na प्लस बनेगा। बस उसी तो समझाने के लिए यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है। ये मेरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें ये जो लॉन्ग चेन वाला पोर्शन है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, देखो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एंड दिस इज द एसिडिक पोर्शन। It is called, simply we can say it is ionic part. ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है। अभी इस स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप मेरा क्लींसिंग एक्शन कैसे काम करता है, कैसे डर्ट ग्रीस ऑयल ये सब को वो हटाता है। तो याद रखना, ये जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, दिस इज कॉल्ड, मतलब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है। और आयनिक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब हुआ? तो हाइड्रो मतलब हो गया यहाँ पर वाटर। पानी से नहीं डरता। हाँ सर पानी से डर लगना। सर एक हाँ, पानी पानी से से डर लगता डरता है। है और एक नहीं डरता है। हाँ, और फोबिक कहाँ से आया? फोबिया से। So it is water phobia and it has, this is water loving group, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फोबिक ग्रुप और हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक हुआ सबका? हाँ सर। तो में क्या लिखा है? वाटर प्लस फोबिया, वाटर प्लस फोबिया। फिलिक में फिलिक। फिलिप में हाँ वाटर लविंग। हो जाए तो बोलो। यस सर, होगी। ओके। सर वेट सर। अच्छा,
Yes, sir. Done. होते तो अभी देखो क्लिंचिंग एक्शन कैसे काम करता है, मतलब सोप काम कैसे करता है। ठीक है, क्लिंचिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो जो मेरा ये लॉन्ग चेन ऐसा जो भी था, ठीक है, इसमें ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन था, ठीक है, इट इज सॉल्यूबल इन oil, grease, okay, or it can attack the dust form because they are non-polar. Oil non-polar, grease non-polar, dust non-polar, so they will be attack this hydrocarbon portion, okay, and this ionic portion is नॉन पोलर मतलब बताएंगे सर फिर से? जिसमें कोई चार्ज नहीं है। नॉन पोलर मतलब सिंपली जिसमें कोई चार्ज नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, बट ये आयोनिक पोर्शन है तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है, ठीक है। सो इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो जब भी हम लोग सोप को डर्टी क्लोथ से ऊपर जब वाटर के साथ रब करते हैं तो क्या होता है कि क्लोथ से ऊपर जो डस्ट या फिर ऑयल या फिर ग्रीस लगा हुआ है, दे विल बी ट्रैप्ड बाय दिस hydrocarbon portion, okay, and and they will form a spherical soap molecules, okay, spherical molecules that is called, ये देखो सपोज the missile formation दिखा रहे सपोज दिस इज डस्ट या फिर ऑयल या फिर ग्रीस कुछ भी मानो, ठीक है। इसके साथ मेरा कौन अटैच रहेगा, ये हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसके साथ मेरा अटैच रहेगा हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन। हाइड्रोकार्बन पोर्शन इसको टैप कर लिया। बाहर में मेरा कौन है, हम लोग इसको हेड से दिखा लें। इसको बताया जाता है दिस इज कॉल्ड टेल और इस पोर्शन को बोला जाता है हेड। सो दिस इज हेड, दिस इज हेड। सर वो मिडिल में क्या है सर? मिडिल वाला पोर्शन जो है वो डस्ट है या फिर ऑयल है या फिर ग्रीस है, ठीक है। तो उसको वो टैप कर लेता है, ठीक है। अब टैप करने के बाद देखो क्या बोले थे कि ये जो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन इज हाइड्रोफोबिक, तो ये क्या करेगा, ये वाटर से दूर रहेगा। और ये स्मॉलर पोर्शन जो है CO माइनस वाला हेड वाला पोर्शन, ये हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर से तरफ रहेगा। और बाहर में क्या है, वाटर सरफेस है ना, बाहर में क्या है, वाटर सरफेस है, इसलिए वाटर मेरा क्या होता है, पोलर होता है। और वाटर पोलर है, उसके साथ ये पोलर का बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, इस पोजीशन पे मेरा कौन है, Na+ है, मतलब COO माइनस Na+ है। हाँ सर। तो ये पोलर पोर्शन बनता है, ये पोलर पोर्शन वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है, मतलब अट्रैक्ट होता है। और ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन अंदर की तरफ चला जाता है डस्ट को लेकर।
तो पूरा का पूरा जो ये फॉर्मेशन हुआ, ये क्या हुआ, ये स्फेरिकल बॉल की तरह हो गया, जिसमें बाहर पोलर है और अंदर नॉन पोलर है। पोलर मतलब चार्ज, तो बाहर चार्ज है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो वो लोग भी सेटिस्फाई हो गया कि उसको वाटर नहीं चाहिए, इसलिए वो वाटर से दूर अंदर में है, और ये लोग तो वाटर चाहिए, इसलिए ये लोग बाहर में है। अब वाटर पोलर है, ये भी पोलर है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन हो जाता है, और उसके बाद जब वॉश करते हैं तो वाटर के साथ ये बाहर आ जाता है, डस्ट वगैरह पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये जो स्फेरिकल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिसेल फॉर्मेशन। सर एक बार और समझा दीजिए सर। वेट, हम बोले जब हम लोग डर्टी क्लोथ से ऊपर सोप तो रब करते हैं, तो डर्टी क्लोथ में जो भी ऑयल है या फिर डस्ट लगा हुआ है या फिर ग्रीस लगा हुआ है, वो मेरा क्या है, दे आर नॉन पोलर, ओके, दे आर नॉन पोलर। ये ऑयल, ग्रीस, डस्ट, ये सब होता है नॉन पोलर। और जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है मेरा, जो लॉन्ग चेन, वो भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर विल अटैक नॉन पोलर, पोलर लव्स पोलर। तो नॉन पोलर वाला पोर्शन क्या किया, ये सोप का जो नॉन पोलर वाला पोर्शन था, वो डस्ट वाले के साथ बॉन्ड बना लिया। सोप कौन सा पोर्शन से डस्ट को अटैक करेगा, नॉन पोलर पोर्शन से, हाइड्रोकार्बन पोर्शन से, तो अटैक कर लिया और बाहर की तरफ एक्सपोज किया अपना पोलर पोर्शन। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ मेरा वाटर है, बाहर की तरफ वाटर है, तो वाटर पोलर होता है, तो पोलर के साथ इस तरफ पोलर अट्रैक्शन बनेगा और इस हिसाब से वो बाहर आ जाएगा, डस्ट तो लेता है, सोप बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक स्फेरिकल फॉर्मेशन हुआ, स्फेरिकल मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, इसी तो बोला जाता है मिसेल। और ठीक है, सर मतलब सर जो आयोनिक पार्ट होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। हाँ, आयनिक पार्ट वाटर को अटैच करता है, तो वाटर का डिसोसिएशन में H+ और OH- फॉर्म होता है ना, हाँ सर। तो वो भी पोलर हुआ ना, तब डिसोसिएशन होना मतलब पोलर हुआ, तो वो भी पोलर है, और ये आयनिक पोर्शन तो पोलर है ही, तो पोलर विल अटैक पोलर, पोलर लव्स पोलर, तो पोलर बाहर आ जाती है, बाहर मतलब बाहर की तरफ एक्सपोज होता है, और ये नॉन पोलर है तो ये अंदर की तरफ रहता, वाटर से दूर रहता, हाइड्रोफोबिया था इसको, इसलिए वो दूर रहा, और ये हाइड्रोफिलिक था, इसलिए वाटर की तरफ रहा, अब इस हिसाब से बाहर चला जाएगा। मतलब ऐसे समझो, ये हो गया मेरा डस्ट वाला पार्टिकल्स, और इस हिसाब वो से सर ये वो बॉन्ड बना वाटर रहा से है। दूर चल जाएगा ना। हाँ, मतलब वाटर से दूर मतलब क्या, अंदर की तरफ रहता है और बाहर से उसको चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है आयनिक पोर्शन, लाइक दिस। तो देखो क्या हो रहा है, मतलब अगर हम लोग अच्छे से समझे, तो ये रहा मेरा डस्ट पार्टिकल्स, और ये है मेरा सोप्ता बीर पार्टिकल्स, ये है सोप्ता बीर पार्टिकल्स। तो ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन से इसका अटैच किया हुआ है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन से अटैच किया हुआ है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन से अटैच किया है। बाहर की तरफ जो भी है वो आयनिक है, वाटर सरफेस है तो ये नॉन पोलर है, ये अंदर में है, और बाहर से आयनिक पोर्शन है, जमा हुआ है, यहाँ तक वाटर नहीं पहुंचा है, बाहर से ये लोग प्रिवेंट किया हुआ है। अब जब वाटर के साथ हम लोग वॉश करेंगे तो ये इस हिसाब से बाहर चला जाएगा, और ये जो फॉर्म हुआ टोटल, इसी तो बोला जाता है मिक्सचर फॉर्मेशन। हाँ सर ठीक है। सर वो CO- का क्या होता है? यहीं पर है, यहीं पर है, ये CO- यहीं पर है, हम लोग सिर्फ Na+ लिखे, मतलब यहाँ CO- Na+ है। CO- लिखने से वो जगह मतलब दिखने में थोड़ा ये लगता है, इसलिए सिर्फ Na+ तो दिखा है, सबसे एंड में Na+ है इसलिए। तो सर जब वाटर को मतलब वॉश करके हम लोग फेंकते हैं तो सर उसके साथ तो ये आयंस भी चल जाएगा ना। हाँ, पूरा मतलब पूरा, देखो जब भी वॉश करते तो पूरा सोप, सोप तो वो जो लेदर फॉर्म होता है पूरा बाहर जाता है ना, हाँ सर। तो उस लेदर में क्या रहता है, मतलब पूरा सोप मॉलिक्यूल्स ही रहता है, बस वो डस्ट तो अपने अंदर वो ट्रैप करके बाहर निकाल देता है। तो ट्रैप कैसे करता है, वही इस पता है मतलब इस टाइप से वो ट्रैप करता है। ठीक है सर ठीक है।
होते हैं। अभी देखो सोप क्या है कि सोप मिला ये करता है, मतलब कुछ लिमिटेशंस है कि हम लोग हर टाइम सोप यूज नहीं कर सकते, इसलिए तभी तभी हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो तब हम लोग सोप यूज नहीं करते। जनरली हार्ड वाटर अगर मेरे पास है तो हम लोग सोप यूज नहीं करते। ठीक है, सोप इज नॉट सुटेबल फॉर washing with hard water. For washing with hard water. ओके, क्यों नहीं फॉर्म होता है? बिकॉज जब हार्ड वाटर यूज करते हैं तो सोप लेदर फॉर्म कर ही नहीं पाता है, वो स्तंभ बना देता है, तो मेरा सोप सिर्फ वेस्ट होता है, कुछ फायदा होता है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे हम लोग डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, हार्ड वाटर के साथ जनरली हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं। ठीक है, याद रखते हैं इस टाइम पे होता क्या है, विथ हार्ड वाटर सोप। हाफ वाटर मतलब हार्ड वाटर मतलब वो सारे वाटर जो सोप के साथ इजीली लेदर फॉर्म नहीं करता है। जो फिना होता है सोप को रब करने पर जो फिना होता है, लेदर फॉर्म होता है, वो लेदर फॉर्म नहीं होता है। देखते हैं बहुत टाइम पे हम लोग घर में जो वाटर यूज कर रहे हैं, तभी बाहर ट्यूबवेल का वाटर यूज करना या फिर तभी म्यूनिसिपलिटी का वाटर यूज करने देते हैं, किसी ना किसी वाटर में सोप को रब करने पर, बहुत रब करने के बाद थोड़ा बहुत लेदर होता है। ठीक है, तो उस वाटर को बोला जाता है हार्ड वाटर, जिसमें सोप लेदर फॉर्म नहीं कर पाता है। जो सोप के एक्शन करने पर भी लेदर फॉर्म नहीं करता है। हाँ, से हार्ड वाटर का डेफिनेशन मतलब सर क्या होगा? हार्ड वाटर का डेफिनेशन वही होता है, द वाटर व्हिच कैन नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप, या फिर द वाटर इन व्हिच सोप कैन नॉट फॉर्म लेदर, दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर मतलब जिसमें इजीली लेदर फॉर्म होता है। ज्यादा मतलब हार्ड वाटर सब ज्यादा मतलब हार्ड वाटर के अंदर क्या रहता है सर जिसके कारण सोप नहीं हो हम लोग पाता? ये 11 में जब हाइड्रोजन वाला पोर्शन आएगा, वहां पर वाटर जब डिटेल्स में होगा तब पता चलेगा। बेसिकली हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम का कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो लोग क्या करता है कि वो सोप के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो वो लेदर फॉर्म नहीं करते, वो स्पंप फॉर्म कर देता है। ठीक है, विथ हार्ड वाटर सोप फॉर्म्स स्पंप इंस्टेड ऑफ लेदर। ठीक है, द वाटर So क्या is लिखे सर? So forms स्तंभ, SCUM स्तंभ। स्तंभ का मतलब हुआ जितना, अगर कहीं पर भी बाहर भी कभी घूमने गए होते और वाटर यूज किए होते, डिफरेंट डिफरेंट वाटर विथ सोप तो देते हो देती, तभी तभी वाटर के साथ सोप तो बहुत रब करने के बाद लेदर होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे लेदर भी नहीं होता है, एक व्हाइट कलर का मतलब प्रेसिपिटेट जैसा बाहर निकलते चलता है, व्हाइट कलर का मतलब चौक डस्ट की तरह एक बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड स्पम। ठीक है, अगर घर के आसपास कहीं ट्यूबवेल है तो एक बार ट्यूबवेल से वाटर लाकर सोप रब करके देख सकते हो। घर में जो वाटर यूज करते हो फॉर ड्रिंकिंग, उसमें सोप घसो, उसमें सोप रब करो, देखो इजीली लेदर फॉर्म होगा। लेकिन बाहर से ट्यूबवेल से वाटर एकदम लाते रब करो, देखो लेदर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये तो सफेद सर लेदर का प्रेसिपिटेट। मतलब किसको बताएगा सर? लेदर का मतलब फेना, फेना जो झाग प्रोड्यूस होता है, साबुन से घसने पर जो झाग फॉर्म होता है ना, दैट इज कॉल्ड लेदर।
the water which do not forms lather with soap is called hard water. ठीक है, घर के आसपास अगर ट्यूबवेल है तो एक बार आज ही टेस्ट कर सकते हो, डिफरेंस खुद ही समझ में आएगा कि क्यों उसको हार्ड बोल रहे, क्यों इसको सॉफ्ट बोल रहे। ठीक है, सर तो ट्यूबवेल का पानी हार्ड वाटर होता है? जनरली मोस्ट ऑफ द ट्यूबवेल्स का वाटर हार्ड वाटर होता है, तो उसको हम लोग फिल्टर नहीं कर रहे हैं ना, तो उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम वाला सॉल्ट प्रेजेंट है। वो सॉल्ट बेसिकली क्या करेगा कि वो सोप के साथ रिएक्शन करेगा, तो अगर वो सोप के साथ रिएक्शन कर दिया तो सोप तो अपना प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा है, जो कि वो डस्ट वगैरह तो एडिट करे, तो हाँ उसमें सर, तो इसलिए वो स्तंभ प्रोड्यूस करता है। ठीक है सर। ट्यूबवेल हुआ सर या तो फिर फिर वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ठीक है, हार्ड नहीं है, वाटर? नहीं है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी वो सेफ नहीं है। ओके सर। ट्यूबवेल हुआ, वेल हुआ, अगर कहीं कुआं भी है आसपास तो उसका भी वाटर लाते तुम टेस्ट कर सकते हो। चापाकल से हैंडपंप। हाँ, वो भी कर सकते हो। उसमें भी क्या है ना, आपकी मेन स्पेस टू स्पेस वैरी करता है। बहुत सारे ट्यूबवेल से वेल्स का जो वाटर मिलेगा उसमें फॉर्म हो जाएगा, और बहुत सारे स्पेस पे नहीं होता। बेसिकली सॉइल जो है, वेल के नीचे जो सॉइल है, अगर सॉइल में वो मेटल्स प्रेजेंट है तो वहां तो वाटर हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह तो वाटर कलेक्ट करो ट्यूबवेल वाटर का, फिर देखो डिफरेंस समझ में आएगा, किसी ना किसी में तो होना चाहिए। सर मतलब जो पानी पीने लायक नहीं है वो हार्ड वाटर होता है? जो पानी पीने लायक नहीं है तो ऐसा नहीं बोल सकते जो पानी पीने लायक नहीं है वो हार्ड वाटर है। मतलब हार्ड वाटर का डेफिनेशन लेदर से दिया जाता है कि वो सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं करता है, हार्ड वाटर वो स्पम फॉर्म करता है। सर और कम हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। नॉर्मली ये पता करना होगा कि ये पानी जो है वो मतलब हार्ड वाटर है या नहीं, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? सोप से हम लोग सोप यूज करेंगे, अगर लेदर फॉर्म हुआ, इजीली लेदर फॉर्म हुआ तो वो सॉफ्ट वाटर है, लेदर फॉर्म नहीं हो रहा है, स्पम फॉर्म हो रहा है तो वो हार्ड वाटर है। ओके सर। और सर हार्डनेस ऑफ वाटर को भी जो रिमूव करने के लिए एक होता है सर केमिकल सब्सटेंस, हाँ तो होता है, तो वो सब हम लोग एडवांस क्लासेस में होगा सब। वो ठीक है सर। ठीक है, वहाँ पर डिटेल्स में बोला जाएगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो सॉल्ट होता है कौन सा फॉर्म में वो सारा सॉल्ट फॉर्म प्रोड्यूस होता है, फिर इसे कैसे रिमूव किया जाए, सब आएगा हम लोग हायर क्लासेस में। तो हम लोग देखो, सोप अगर मेरा हार्ड वाटर के साथ काम नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, विथ हार्ड वाटर वी विल यूज डिटर्जेंट। विथ हार्ड वाटर डिटर्जेंट्स आर सुटेबल। Na2CO3 डाल सकते भाई, तो उससे भी हटेगा। तो अभी देखो डिटर्जेंट मेरा क्या है, डिटर्जेंट जो है ये भी मेरा लॉन्ग चेन है, बट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, बट लॉन्ग चेन किसका, ये होता है सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या मतलब हुआ कि एक ये है मतलब बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मेरा सल्फोनिक एसिड है, और उसके साथ एक लॉन्ग एल्काइल चेन मेरा जुड़ा हुआ है। ठीक है,
जैसे कि अगर हम लोग कॉमन डिटर्जेंट जो होता है, कॉमन डिटर्जेंट का एग्जांपल लेते तो वो ऐसा है कि CH3, उसके बाद CH2 जो सोप में था, CH2 उस हिसाब से CH2 11 टाइम्स आता है। देन इज बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग, या फिर इसको लिखा जाता है C6H4। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है, एक ये वाला ग्रुप से, और इधर सल्फोनिक एसिड का है ना, तो ये SO3 माइनस Na+। ठीक है, तो ये मेरा कॉमन डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है, जब CH3 CH2 होल 11 बेंजीन रिंग SO3 Na। अगर बेंजीन नहीं लिखना है तो हम लोग उसको लिखेंगे C6H4। ठीक है, क्लींसिंग एक्शन नियर अबाउट सेम है डिटर्जेंट का, मतलब ये वाला पोर्शन आयनिक है तो ये बाहर की तरफ रहेगा, दे विल बी हाइड्रोफिलिक। ये लॉन्ग चेन है, दिस इज हाइड्रोफोबिक। ये अंदर की तरफ ऑयल डस्ट ब्रिज तो ट्रैप कर लेता, ये बाहर रहेगा, फिर बाहर निकल जाएगा मिसल बनाकर। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आई थी व्हाट इज द डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो फर्स्ट लिखना है डेफिनेशन कि सोप मेरा हुआ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा हो गया सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सोप मेरा क्या करेगा, सॉफ्ट वाटर के साथ काम करेगा, हार्ड वाटर के साथ नहीं। डिटर्जेंट क्या है मेरा, दोनों के साथ काम करेगा। अगर हार्ड के साथ काम कर रहा है तो सॉफ्ट के साथ भी काम करेगा ही। ठीक है, सोप मेरा क्या होता है, सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक है, डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। सोप हाँ क्या सर है वो मेरा, पोल्यूशन कॉज करता है हाँ, डिटर्जेंट। सोप बहुत मतलब डिटर्जेंट बहुत देर तक वॉश करने के बाद क्या होता है ना, जितना हाथों के ऊपर एक रफ, मतलब हाथ रफ हो जाता है, स्किन रफ हो जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा हार्मफुल भी होता है ज्यादा डिटर्जेंट यूज करना हाथों के लिए। तो बस यही था क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट में। सो चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नेक्स्ट क्लास में फिर लास्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज पीरियोडिक टेबल। सर यस सर। सर दिसंबर से सर कीबोर्ड है हम लोग का। कब से, एक बार पेज दिखाएंगे? 7 दिसंबर से। कहाँ पर से दिखाए बताओ, शुरू से। यस सर। दिस इज द स्टार्टिंग, 7 दिसंबर से बोर्ड है। नहीं सर प्री बोर्ड। प्री बोर्ड 7 दिसंबर से, अच्छा सर एकदम फर्स्ट पेज दिखाइए ना एक बार। यही है। नहीं सर, जहाँ से क्लास स्टार्ट किए थे। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट किए थे, देखो कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है कीबोर्ड में। सर मतलब फुल सिलेबस जो बोर्ड में आएगा वही वाला सिलेबस। अच्छा, फुल सिलेबस आएगा, मतलब पीरियोडिक टेबल हम लोग खत्म करना होता 7 दिसंबर से पहले। हाँ सर। कितने क्लासेस मिल रहा है, आज होते 1 2, एक क्लास मिस हो जाएगा। अच्छा नहीं, दिवाली का हम लोग का छुट्टी तो है अभी ना। तक फिक्स नहीं हुआ है, पर हम लोग को पता नहीं कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। अच्छा ठीक है, अगर क्लासेस, क्योंकि तुम लोग का तो चारों क्लासेस जो भी पढ़ रहे रोटेशन में पढ़ जा रहा है, 2 क्लास, 2 एक्स्ट्रा क्लासेस देते फिर खत्म करवा देंगे। सर तो मेरा पीरियोडिक डाउट टेबल है 4 सर। क्लास इनफ है, 4 क्लास मोर देन इनफ है। हाँ सर हो गया। ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, 4 क्लास में आराम से हो जाएगा। कोई भी एक सूटेबल टाइम एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, खत्म हो जाएगा। 3 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर मेरा एक डाउट है नॉन मेटल मेटल से। बोलो।
बस शो करूँ सर? सो चलो देख चलो। सर वीडियो तो ऑन नहीं हो रहा है। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, हम तो कुछ करना पड़ेगा क्या? हम तो होस्ट भी नहीं है, होस्ट तो ऑफिस से चल रही है क्लास। सर वो ग्रुप में भेज सकता है सर फोटो, फिर वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करो जैसे कुछ अगर। सर वो मॉड्यूल का था सर, लीचिंग और केमिकल सेपरेशन है ना, मेटल नॉन मेटल का। हाँ सो वही थोड़ा मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है। ब्लीचिंग। लीचिंग एंड और केमिकल सेपरेशन। अच्छा लीचिंग और केमिकल सेपरेशन, इसमें कहाँ समझ में क्या हुआ बताओ, मतलब कौन सा पोर्शन नहीं समझ में? सर यहाँ है कि सर इन दिस मेथड द पाउडर और इज ट्रीटेड विद सुटेबल सॉल्वेंट। सर यहाँ एक एग्जांपल दिया है, बॉक्साइट और कंटेन्स Fe2O3 एंड silicon dioxide etc. as impurities. The ore is powdered and treated with solution of sodium hydroxide. नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। ठीक है तुम हमको क्वेश्चन भेजो, हम देखते हुए बता रहे। थोड़ा सा नीचे करिएगा सर। थोड़ा सा नीचे पेपर लो। सर बोल रहे हैं हम लोग का है ना सर, एल्डे फंक्शनल ग्रुप में एल्डेहाइड और केटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर उसमें एल्डेहाइड का अगर मतलब फॉर्मूला लिखने बोला तो बुक में दिया है सर, बॉन्ड सी, सर सी का ऊपर बॉन्ड देके H फिर डबल बॉन्ड O। हाँ सर वैसे ही बनाएंगे हम लोग या हाँ मतलब CHO लिख देंगे? CHO भी लिख सकते हो, इतनी बात है। सर बॉन्ड CHO तो हाँ बॉन्ड CHO। ठीक है सर सर लेकिन लिख दिया। बुक में सर C और O का बीच डबल बॉन्ड है सर, हाँ लेकिन डबल बॉन्ड है, लेकिन हम लोग तो उसको एक साथ लिखते हैं ना CHO, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। सर CHO का बॉन्ड देना पड़ेगा ना? अगर दे दिए तो भी अच्छा है, क्योंकि वो तुम ब्रेक करके लिख रहे हो, और अगर हाँ नहीं दिए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है सर। भेजे? यस सर। चलो तो देखते हैं। सर वो एग्जांपल थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा अच्छा देखते हैं। लीचिंग और केमिकल सेपरेशन। हाँ इन दिस मेथड द पावर लेवल इज ट्रीटेड विद सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ नहीं, मतलब देखो लीचिंग और केमिकल सेपरेशन क्या हुआ कि मेरा एक सुटेबल सॉल्वेंट हम लोग डालेंगे ताकि वो मेरा इम्प्योरिटीज को हटा दे, ठीक है। तो एक ऐसा सुटेबल सॉल्वेंट डाले, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि बॉक्साइट मतलब क्या होता है, एल्यूमिना का और होता है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। तो है। उसमें यस सर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और साथ ही इम्प्योरिटीज के हिसाब से कौन है कि Fe2O3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो बोल रहे हैं कि सुटेबल सॉल्वेंट मतलब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डाले, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और SiO2 जो है ओल्ड प्रेजेंट, वो मेरा डिजोल्व हो जाएगा और वो फॉर्म करेगा सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट। बट जो इम्प्योरिटीज है, मतलब जो आयरन वाला इम्प्योरिटीज है, वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो वो अनडिजोल्व भी रह जाएगा, तो फिर हम लोग सेपरेशन कर लेंगे ना,
फिल्टर पेपर या फिर अदर्स प्रोसेस से, वही बता रहा है। तो सर वो जो फिल्टर्ड होता है, तो फिल्टर्ड तो सर इम्प्योर मतलब जो डिजॉल्व नहीं है उससे तो फिल्टर्ड मिलता है। हाँ, तो जो डिजॉल्व मतलब नहीं यहाँ है तो, मतलब आयरन वाला डिजॉल्व नहीं हुआ, वो फिल्टर हाँ हो तो गया। पर सर यहाँ तो है द फिल्टर्ड कंटेनिंग सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। हाँ, तो अब वहां से फिर से हमको सोडियम सिलिकेट को अलग प्रोसेस से बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज तो हमने बाहर निकाल दिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर हम चीज तो वहां से बाहर निकाल दिए। देखो उसके बाद कुछ दिया होगा, उसके बाद क्या दिया, देखिए फिल्ट्रेट कंटेनिंग सोडियम एल्यूमिनेटेड सोडियम सिलिकेट स्टार्ट विथ सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर से उससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया। तो फिर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग दिए तो क्या हुआ कि सोडियम एल्यूमिनेट जो था वो अंडर दोस हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज प्रेसिपिटेट, तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बना दिया। और बाकी जो था the addition of aluminum hydroxide accelerates the precipitation of hydroxide soluble, और सोडियम सिलिकेट जो सॉल्यूशन में था वो सॉल्यूशन में ही रह गया। फिर वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से प्रेसिपिटेट से निकाल लो, फिर उसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो वहां से हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर प्योरली मिल जाएगा। ठीक है सर। तो वो हो गया एक पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग वो प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? पेज हो गया था, पेज जो बोल रहे थे पेज पूरा लिखना हो गया। यस सर, हो गया। ओके, ठीक है, तो आज क्लास स्टॉप, चैप्टर भी कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। सर वेलकम। नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर का रिवीजन करा देंगे इसका सर, नोमेनक्लेचर का। अभी अब ये पीरियोडिक टेबल पहले खत्म करवा दे, उसके बाद रिवीजन करवाएंगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि अगर ये एग्जाम तुम लोग का स्टार्ट हो जाए तो फिर ओके सर। ओके। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा तो जो भी टाइमिंग पे प्रोवाइड किया जाएगा अटेंड कर लेना है, हाँ चाहे सर, ठीक है सर। ट्यूशन रहे चाहे कुछ भी रहे, एब्सेंट करके क्लास कर लेना है। हाँ सर, करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम, बाय, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू।